يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الإسراف أن تأكل ما اشتهيت أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم محمد تمہیں گو خدا رو پیارا محمد تمہیں گو خدا رو پیارا আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা মোহাম্মদ তুমি গো খোদার পেয়ারা আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা এসেছিলেন তুমি গো শিরাতে মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে নামাজকে বলো না কাজ আছে কাজকে বলো আমার নামাজ আছে নামাজ বিহীন পরো পরে কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে ফজর কাটে ঘুমের ঘরে দুহর কাজে কাজে আসর কাটে খেলাই দুলায় মাগরিব মাঝে মাঝে এশার সময় হয়ে গেলে তাকে পিছে দুনিয়ার পিছে নামাজকে বলো না কাজ আছে কাজকে বলো আমার নামাজ আছে जलसा और ठंडी के ज़माने में हो रहा है हौसला ठंडा है खा पी करके आप बैठे हैं आपने दिल खुश कर दिया कि बड़ा सन्नाटा आया है दिल से दुआ देता हूँ हमारे सुनाने को अल्लाह और आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह शुगर में रसगुल्ला इस तरह खाएंगे कि जो होगा देखा जाएगा हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह बहुत हाथ कहाँ उठाना है कहाँ नहीं उठाना है दिमाग को टटोल करके मैं पैगाम दे रहा हूँ ताकि मेरा पैगाम ज़ाय ना हो जाए ये मुझे समझ में आ जाएगा कि आप पिंडाल के नीचे हैं या ससुराल में 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है माल की मोहब्बत होगी 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे और ये माल कब कितना है 3 वजह से और ये मसले का हल कैसे होगा हमारे घर से गरीबी कैसे दूर होगी मसले का हल क्या है ये मेरा आखिरी सवाल है सुनने के लिए तैयार है जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है माल की मोहब्बत होगी 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे दिल में लालच पैदा हो जाएगा दुनिया के चक्कर में दीन बर्बाद हो जाएगा पहला नुकसान दूसरा नुकसान ये होगा कि माल बचाने के लिए हाथ खींचना पड़ेगा बखील और कंजूस हो जाएंगे दूसरा नुकसान तीसरा नुकसान ये उठाना पड़ेगा कि रात भी बेचैन हो जाएंगे दिन में भी बेचैन हो जाएंगे माल कमाने के चक्कर में जिस माल से आराम मिलता था उस माल कमाने के चक्कर में आप बेचैन हो जाएंगे 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे अगर माल की मोहब्बत आ गई दूसरा सवाल था ये माल कब फितना है माल उस वक्त फितना है जब हासिल हो जाए उसका हक अदा ना हो ज़कात ना दे हज ना करे ये माल फितना
مال کمانے سے پہلے یہ نہیں دیکھ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ مال فتنہ ہے۔ مال کمانے کے بعد خرچ کرنے کے وقت میں یہ نہیں دیکھتا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ مال فتنہ ہے۔ آخری سوال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ دنیا میں کیسے ترقی کریں گے، آپ کے بچے کو کیسے ترقی ہوگی؟ آسان سا راستہ ہے، میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دل میں خوف خدا پیدا کیجئے، اللہ آپ کی روزی میں برکت ڈال دے گا۔ مسئلہ برکت سے حل ہوتا ہے۔ دل میں خوف خدا پیدا کیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ محنت کیجئے، کاہلی اور سستی مت دکھائیے، مہنگائی بڑی کمر توڑ آ رہی ہے۔ محنت کیجئے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تیسری بات، حساب سے خرچ کیجئے، حلال کمائیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی، آمدنی اٹھنی ہوگی، خرچہ روپیہ ہوگا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، یہ دیکھیے یہاں سے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو ہم اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتے کو، وہ ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتے کو، وہ زمین کو سونگتا ہے۔ آپ نے کتے کو دیکھا ہوگا، اس کو کچھ کھانے کے لیے دیجئے وہ دم ہلاتا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتے کو اگر کچھ مت دیجئے تو وہ آنکھ دکھاتا ہے، آپ پر بھوکتا ہے۔ یہ کتے کو سامنے رکھیے، میں آپ کے سامنے حلال اور حرام کا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں گارنٹی لیتا ہوں حرام سے آپ بچ جائیے، اللہ آپ کو ساری مصیبت سے بچا لے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آپ نے دیکھا کتا جب چلتا ہے تو زمین کو سونگتا ہے، کیا مطلب ہوا؟ وہ ٹٹولتا ہے کہ میری روزی کہاں ہے۔ اسی طرح حرام کھانے والا لوگوں کی جیب کو ٹٹولتا رہتا ہے کہ کہاں مال ملے گا، کتنا مال ملے گا۔ دھیان سے سنیے گا۔ دوسری بات، آپ نے دیکھا ہوگا جب کتے کو روٹی کا ٹکڑا ملتا ہے وہ دم ہلاتا ہے، جہاں ان حرام خوروں کو حرام کا لقمہ ملتا ہے یہ وہاں دم ہلاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ اور جہاں کچھ نہیں ملے گا وہاں آنکھ دکھائیں گے، غریب کو آنکھ دکھائیں گے، ذرہ برابر بھی اس کی قدر و قیمت نہیں رکھتے، عزت نہیں دیتے۔ ایک بات کو یاد رکھیے دھیان سے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ بات تجربے میں ہے، جب کتا جوان ہوتا ہے ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ راز یہ ہے کہ ٹانگ میں پیشاب نہ لگے، پیر میں پیشاب نہ لگے، پیشاب سے بچنے کے لیے کتا ٹانگ اٹھاتا ہے۔ اور حرام کھانے والے کو آپ دیکھیں گے وہ پیشاب سے بچتا ہے، پخانے سے بچتا ہے، یہ گندگی ہے، لیکن منہ میں جو حرام جا رہا ہے اس سے زیادہ گندگی اس سے منہ کو نہیں بچاتا ہے، پیٹ کو نہیں بچاتا ہے۔ جو حال کتے کا ہے وہی حرام کھانے والے کا ہے۔ معاف کیجئے گا، دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم جانتے ہو حلق کے نیچے جو آتا ہے تمہارے پیٹ میں جمع ہوتا ہے، جانتے ہو یہ تمام بدن کا حوض ہے، یہ تالاب ہے، تالاب میں جو پانی ہوگا وہی نالی میں پہنچے گا۔ اگر تمہارے پیٹ میں حرام ہے تو رگوں میں دوڑنے والا خون حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے سامنے دسترخوان ہوتا ہے، دسترخوان میں لقمہ اٹھانا ہوتا ہے، ہم بسم اللہ پڑھ کر کے لقمہ اٹھاتے ہیں، اگر وہ حرام لقمہ ہے اور ہم نے بسم اللہ پڑھا یہ کفر ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ دھیان سے سنیے، کمانے والے نے غلطی کیا ہے، حرام کما کر کے لایا ہے، گھر کے بچے وہی حرام کھا رہے ہیں، گھر کی عورت وہی حرام کھا رہی ہے، گھر کے سارے لوگ حرام کھا رہے ہیں، قصور ایک کا ہے، سب کو سزا مل رہی ہے۔
ایک مثال ذرا دھیان سے سنیے گا. اتنا بڑا مجمع میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, اللہ ہمارے سنانے کو قبول فرمائے. آمین. آج سے 150 سال پہلے شادی ہو رہی ہے, اسٹیج اسی طرح لگا ہوا ہے, لڑکی ادھر ہے, لڑکا ادھر ہے, قاضی صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے جیسے ناظم صاحب بیٹھے ہوئے. یہ موبائل کا دور نہیں ہے, لڑکی نے لڑکا کو دیکھا نہیں ہے, پہلی بار اسٹیج پہ لڑکا داڑھی والا ٹوپی والا عالم دین بیٹھا ہوا ہے نکاح کرنے کے لیے. لڑکی نے جیسے ہی ٹوپی والے کو دیکھا, یہی میرا دولہا ہوگا, جیسے دیکھا یہی میرا شوہر ہوگا, لڑکی کھڑی ہو کر کے کہتی ہے مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں. اب سارے لوگوں کا سر جھک گیا. قاضی صاحب جو شیخ احمد علی لاہوری اتنے بڑے عالم تھے, ان کا بھی سر جھک گیا. سب نے سوچا کہ مارے شرم کے سر جھکا ہوگا. 5 منٹ کے بعد سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگوں, میرا شرم کے مارے سر نہیں جھکا تھا, میں مراقبے میں چلا گیا. مراقبے سے سر اٹھا کر کے کہا کہ جانتے ہو اس لڑکی نے داڑھی والے کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اس کے باپ نے حرام کمایا تھا, اس کو حرام کھلایا تھا, اس کے پیٹ میں حرام تھا, اس لیے اس کو سب کچھ قبول ہے, نبی کی سنت قبول نہیں ہے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پہلے کمائیں گے, بعد میں حلال حرام دیکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے گا, سب ہاتھ اٹھائیں گے. یہاں سے سنیے گا, دماغ کو کنٹرول کر کے میں اپنے پیغام کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے قارون کا نام سنا ہے, بہت بڑا مالدار تھا. اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مالدار آیا ہی نہیں, نہ کبھی آ سکتا ہے قیامت کا. لیکن جانتے ہیں کہ قارون کیسے ہی برباد ہوا؟ اس مال کی وجہ سے برباد ہوا. کیسے ہوا؟ دھیان سے اس کو سنیے گا. 40 سال تک پہاڑ پر عبادت کرتا رہا. 40 سال یہاں نہیں ہے, گھر لوٹ کر کے نہیں آیا, جنگل اور پہاڑ میں رہا 40 سال. شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی, اس کا دوست بن گیا. ارے اللہ کے بندے, تم صرف عبادت ہی کرتے ہو, جنازے میں شریک نہیں ہوتے, چلو جنازے میں شریک ہوتے. شیطان دوست بن کر کے اس کو وہاں سے لائے. اس کے بعد کہا کہ دیکھو جنازہ پڑھیے, چلو ٹھیک ہے, لیکن ایک دن تجارت کرو, 7 دن عبادت کرو. ایک دن کے لیے تجارت میں لگا. اس کے بعد جب تجارت بہت زیادہ چلنے لگی, دکان زیادہ چلنے لگی, تو کہا کہ ایک دن عبادت کرو, ایک دن تجارت کرو. اب وہ عبادت کا دن بھی تجارت میں گھس گیا. جب وہ مالدار ہو گیا, اس نے سر اٹھانا شروع کیا, زمین پر پیر مارنا شروع کیا, زکوٰۃ کا انکار کر دیا, موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے لگا. اللہ نے زمین میں دھسا دیا. اس لیے مال جب آئے تو سر نہیں اٹھانا, سر جھکانا ہے, اور حلال کمانا ہے, حساب سے خرچ کرنا ہے. میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ. اس پر عمل کریں گے, حلال کمائیں گے, حساب سے خرچ کریں گے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہترین ثبوت دیا. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. مسلمانوں سنبھل جاؤ, مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو. تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں, تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کھاتا بہت اچھا کھلا ہے, پیغام نکل گیا. دوسرا پیغام آ رہا ہے, بہت خوبصورت پیغام آ رہا ہے, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. مکان بنانے کے چکر میں مت رہیے, اچھا کپڑا پہننے کے چکر میں مت رہیے, اچھا کھانا کھانے کے چکر میں مت رہیے. ضرورت پوری کیجئے اور ذخیرہ آخرت کیجئے. آپ سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی عقل مند ہو ہی نہیں سکتا.
ध्यान से सुनिएगा, इसको सुना रहा। आइसक्रीम खाने में लोगों ने कितना पैसा बर्बाद किया है? 11 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर का मतलब 10 करोड़। 11 बिलियन डॉलर आइसक्रीम खाने में बर्बाद किया। और कॉस्मेटिक्स में जानते हैं कितना पैसा बर्बाद हुआ? 11 बिलियन डॉलर। इससे भी बढ़कर के आपको सुनाने के लिए जा रहा, परफ्यूम, वो जो सेंट होता है, उस पर पैसा कितना बर्बाद हुआ? 17 बिलियन डॉलर। इससे भी आगे खिलौना, बच्चे को जो हम खिलौना खरीद करके देते हैं, इस पर कितना पैसा बर्बाद हुआ? 35 बिलियन डॉलर। सिगरेट के धुआं उड़ाने में जवानों ने कितना पैसा बर्बाद किया? 50 बिलियन डॉलर। नशा में, शराब में जवानों ने कितना पैसा बहाया? 400 बिलियन डॉलर। और तालीम में कितना पैसा खर्च हुआ? 6 बिलियन डॉलर। और सेहत पर कितना पैसा खर्च हुआ? 9 बिलियन डॉलर। सबसे कम तालीम में, सबसे कम सेहत में, और फजूल में, बकवास में ज्यादा पैसा बर्बाद हुआ। इसलिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में हमें तमाशा बनाया। ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा मुल्क है बेल्जियम, उसकी आबादी है 3.5 मिलियन। वहां पर लोग कितना शराब पीते हैं सुनकर के हैरत होगी। शराब खाने हैं 1,09,000 शराब खाने हैं। 2,10,40,000 पाउंड की शराब लोग सालाना पीते हैं। 57,600 रोजाना की शराब पीते हैं। और जानते शराब पीने के नतीजे में कितना बड़ा नुकसान हुआ? 80% जवान दारू पीने वाले खुदकुशी करते हैं। अब तो होता है। 79% जवान लाखपति थे दारू पीने से पहले। दारू की क्या आदत लगी, खाकपति हो गए। 75% जवान दारू पीने की वजह से पागल हो गए। और 74% जवान दारू पीने की वजह से हथियार उठाते हैं और जेल जाते हैं। देखिए, शादी दारू ने हमारे जवानों को तहस नहस कर दिया। और सुनकर के हैरत होगी आपको, 1974 के अंदर सऊदी अरब एक सेकंड में 1,15,000 रुपया कमाता था। लेकिन ये पैसा कहाँ रखता था? अमेरिका में। अमेरिका ने हथियार बना करके पैसा बना लिया और ये बेवकूफ का ही बेवकूफ रह गया। ध्यान से सुनिएगा, ब्रुनेई का सुल्तान है, एक मकान बना रहा है, जानते हैं उसमें कमरे कितने हैं? 1787 कमरे हैं उसमें। 564 फानूस है, 257 बैतुल खुला है और 5 तालाब गुस्ल करने के लिए। और गरीबी का हाल यह है कि 15 से 20 हजार लोग एड़ियां रगड़ रगड़ करके रोजाना भूख की वजह से मरते हैं। मैं आपको एक बात बताने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे बस्ती में कोई मकान आपको अच्छा लगेगा, कोई मकान देख करके आपको खुशी होगी, कोई मकान देख करके आपको गम होगा। गम से आप कैसे निकलेंगे? राज बताओ। जब आप देखते हैं बड़ा मकान, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, तो आपको ये एहसास होता है यार मेरा मकान से ये मकान अच्छा है, तो आपको गम होता है। जब आप उससे छोटा मकान देखते हैं तो कहते हैं मेरे मकान से ये मकान अच्छा है, तो आपको खुशी होती है। मैं राज बता रहा हूं, बड़ा मकान मत देखिए, जो मंजिला 2 मंजिला मकान हो उसको मत देखिए, गाड़ी वाले को मत देखिए, बंगले वाले को मत देखिए। आप अगर साइकिल वाले हैं तो आप पैदल वाले को देखिए, अगर आप मोटरसाइकिल वाले हैं तो साइकिल वाले को देखिए, अगर आप 4 चक्का वाले हैं तो मोटरसाइकिल चलाने वाले को देखिए। आपका दिल मजबूत होगा, आपको सुकून होगा। कैसे राज बता रहा हूं, जब आप पैदल चलने वाले हैं, साइकिल चलाने वाले हैं, पैदल चलाने वाले को देखेंगे, पैदल चलने वाले को देखेंगे, तो आपको खुशी होगी कि मेरे परवरदिगार ये तो पैदल चल रहा है, तूने मुझे साइकिल तो दिया। जब आप पैदल वाले होंगे और उसको देखेंगे जिसको पैर नहीं है, तो आपको खुशी होगी कि मेरे परवरदिगार तूने मुझे 4 चक्का नहीं दिया, मोटरसाइकिल नहीं दिया, साइकिल नहीं दिया, कोई गम नहीं है, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो चप्पल, जो पैर तक से महरूम है। आपका दिल मजबूत होगा। हर मकान, चाहे जितना भी बड़ा मकान हो, आलीशान बंगला हो, उसमें 2 ऐब जरूर है। पहला ऐब यह है, जितना वो मकान पुराना होगा उतना बदसूरत होगा, उतना कमजोर होगा। चाहे जितना खूबसूरत मकान हो, आप देख लीजिए लाल किला दिल्ली में जाकर के, कितना पुराना हो गया लेकिन कमजोर हो गया, बदसूरत हो गया। देखते जाइए, जितना भी बड़ा मकान हो, जितना पुराना होगा वो कमजोर होगा, बदसूरत होगा। और दूसरा आए मकान के अंदर ये है, जितना शानदार मकान बना लीजिए, एक दिन उस मकान को छोड़ना होगा, या वो मकान आपको जरूर छोड़ेगा।
4 मकसद के लिए आदमी मकान बनाता है, बिल्डिंग ठोकता है। पहला मकसद ये है कि सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, दूसरा मकसद ये है सर्दी गर्मी से हम बच जाएं, और तीसरा मकसद ये होता है कि हमको इसमें सुकून मिले, और चौथा मकसद ये है कि दूसरा जब देखे तो तारीफ करे। अगर आपने इस मकसद से मकान बनाया कि हमको सर्दी से हिफाजत हो जाए, गर्मी से हिफाजत हो जाए, तब तो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन आपने इस मकसद से अगर बनाया है कि दूसरा तारीफ करे, तो आपको गुनाह होगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक आदमी बगदाद का अमीर था, उसकी उम्र 90 साल थी। उसने एक मकान किराए पे लिया 300 साल के लिए। तो फतेहा नाम का आदमी ऐलान करता है कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, रांची से आए हो, हम लोग तो हाफ पागल है, तुम फुल पागल मालूम होते हो। मलकुल मौत दूसरे की रूह कब्ज करता, उसका इंतकाल कैसे हुआ? का इसलिए कि 90 साल की उम्र वाला बूढ़ा 300 साल का मकान किराए पे ले रहा है। इससे पता चलता है कि उसको यकीन हो गया कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया है। इंशाअल्लाह झूठी शान के लिए बड़ा मकान बनाएंगे, हाथ उठाइए। खैर, कितना ऊंचा कसरे दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी उसकी बुनिया देखो डाले जाओगे, कितना अर्ज़ो तूल में उसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। तीसरा पैगाम तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत खूबसूरत माहौल में आप सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। पीछे माँ बहन बैठी हुई हैं, उनको सामने रखिए। पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी को से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है, आपका इम्तिहान बराबर जारी रहेगा। देखें आप कहाँ डिस ब्रेक मारते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, पूरे जलसे का खुलासा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1989 की रिपोर्ट है, अखबार दक्षिण ने लिखा। जानते हैं 1975 के अंदर 350 लड़की को जिंदा जला दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि लड़के वाले का मुतालबा पूरा नहीं हुआ, दुल्हन को जला दिया गया। 1980 से लेकर के 85 तक महाराष्ट्र में 250 लड़की को, दुल्हन को जला दिया गया। किसके लालच में? पैसे के लालच में, गाड़ी के लालच में, सामान के लालच में। लखनऊ मशहूर शहर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हर 5वें दिन में एक लड़की को जलाया जाता था। काजी शेख अब्दुल फत्ताह आए हिंदुस्तान, अरब के शेख। एक लड़की वाला कहने लगा, हुजूर दुआ कर दीजिए मेरी बेटी की शादी हो जाए। अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हारे पास दुआ करने की क्या जरूरत है, रिश्ता आ रहा कि नहीं आ रहा? कहा हुजूर रिश्ता आ रहा है, लेकिन मुतालबा हो रहा है, मुतालबे के लिए मेरे पास इंतजाम नहीं है, इसलिए आप दुआ कर दीजिए। कहा अल्लाह का बंदा, तू बेटी वाला है, तुमसे कौन सा मुतालबा है? कहा लड़का वाला गाड़ी का मुतालबा कर रहा है, सामान का मुतालबा कर रहा है, और नकद रुपया का मुतालबा कर रहा है। कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान में बेटी की शादी करने का मतलब है, बेटी पैदा करने का मतलब है कि उस बाप ने गुनाह किया जिसकी ये समाज उसको सजा दे रहा है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, और जानते आप अमीर आदमी हैं, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं कि शादी पर बेटी को जो भी देना है दिखा करके मत दीजिए, छुपा करके दीजिए। करोड़पति है, लाखपति है, अरबपति है, लेकिन आप छुपा करके दीजिए। आप दिखा करके देते हैं और बिजली गरीब की बेटी पर गिरती है, वो बूढ़ी हो जाती है, रिश्ता नहीं आता। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं,
मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके पास खत आया कि हुजूर मैं बेटी का बाप हूँ, मुझसे मुतालबा हो रहा है गाड़ी का, मुझसे मुतालबा हो रहा है सामान का, मुझसे मुतालबा हो रहा है रुपया पैसे का। एक बेटी हो तो कहीं से इंतजाम करके दे दो, मैं 4 बेटी का बाप हूँ, कहाँ से इंतजाम करके दूंगा, मुझको इजाजत दीजिए ताकि मैं जहर खा करके मर जाऊं, दुनिया की मुसीबत से छुटकारा पाऊं। हालात कितने खराब हैं मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपने 313 की तादाद में आप बैठे हैं, अगर आपने इस पैगाम को दिल से कबूल कर लिया, मैं जानता हूं कि 313 की बरकत से पूरा हिंदुस्तान इस पैगाम को कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से इसको सुनिएगा। अरब का 72 साल का बूढ़ा आता है हैदराबाद, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो गया। यूपी का आदमी बिहार झारखंड में आता है, 63 साल उम्र होती है, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो गया। आप कहेंगे कितना बेशरम वो बाप होगा जिसने जवान बेटी का रिश्ता एक बूढ़े से कर दिया। ये बेशरम बाप नहीं है, बेटी असल में बोझ बना दिया समाज ने। वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी का गला घोंट रहा है, मजबूर होकर के कि किसी तरह ये सर की मुसीबत सर से हट जाए। जिम्मेदार वो बाप नहीं है, ये गुनहगार समाज है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। पहले ये होता था कि गैर मुस्लिम लड़की को मुसलमान लेकर के भागता था, ये भी गलत है, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। और उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। लेकिन अब कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है, सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में भाग रही है। 3 वजह से भाग रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिल के कान से सुनिएगा। अल्लाह करे कि हमारे ज़मीर को अल्लाह जिंदा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसमें। 3 वजह से हमारी लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग रही है। पहली वजह यह है हमने मोबाइल पकड़ा दिया है, अब वो लड़की किससे बात करती है माँ बाप को कोई मतलब नहीं, इसलिए लड़की भाग रही है। दूसरी वजह यह है कि हम अपनी बच्ची का दाखिला करा देते हैं आंख बंद करके, जिस स्कूल में लड़के भी पढ़ते हैं उस स्कूल में दाखिला करा देते हैं। अब वहाँ इश्क और मोहब्बत हो गई, उसमें भाग गई। तीसरी वजह यह है कि उस लड़की को पता है कि मैं जवान हो चुकी हूँ, मेरा बाप गरीब है, अपनी बिरादरी में मुसलमान लड़के से निकाह करने के लिए मेरे बाप के पास 5 लाख रुपया चाहिए, वो भीख मांग करके बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन हमारा निकाह नहीं कर पाएगा, इसलिए वो लड़की भाग रही है। और जानते भागने की वजह से क्या हो रहा है, आबरू अलग जा रही है, ईमान अलग जा रहा है। खुदा ने अगर सवाल कर दिया तो जहां वो लड़की गुनहगार होगी उससे बड़े गुनहगार हम होंगे। इससे भी हैरत से अंगेज मुताला आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसी हिंदुस्तान में जिसमें हम लोग बसते हैं 10 लाख लड़कियों को एक साल में मारा जाता है। आप कहेंगे कैसे, तो इस तरह से कि अल्ट्रासाउंड में देख लिया कि बेटा है पेट में या बेटी है, उसको गिरा दिया गया। गिरा देने की वजह से उस लड़कियों की तादाद कितनी होती है, एक साल में 10 लाख। और 1965 से लोग ऐलान कर रहे हैं कि भाई ऑपरेशन कराओ, नसबंदी कराओ, आबादी बढ़ेगी, गरीबी आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, बेटा आ रहा आने दो, बेटी अगर आ रही है, 2 बेटी आ गई तो तीसरे में ऑपरेशन करा लेते हैं, इसलिए कि अमीर रहेंगे गरीब हो जाएंगे। बेटी की शादी में अगर गरीब हैं तो कभी अमीर नहीं होंगे। याद रखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 रास्ते से आदमी अमीर होता है, गरीब नहीं होता। आप दिल पर हाथ रख करके बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में जिन लोगों ने हज किया है, वो हज करके वापस आए हैं, उनको आपने गरीब देखा है? मालदारी में इजाफा हो गया। और जिन लोगों ने शादी किया, शादी के बाद देखिए कि वो अमीर है या गरीब है। 90% लोग कंगाल थे, शादी से पहले फूटी कौड़ी भी जेब में नहीं रहती, लेकिन शादी के बाद बीवी की किस्मत से अलग कमाया, बच्चे की किस्मत से अलग कमाया, माँ बाप की किस्मत से अलग कमाया, सबकी दुआ मिली, खुदा मेहरबान हुआ, माला माल हो गए, कंगाल लगी। 2 वजह से आदमी मालदार होता है। ये हमारी जबान नहीं है कि आप झूठा साबित कर दें, ये नबी की जबान है। मेरी जबान झूठी हो सकती है, नबी की जबान कभी झूठी नहीं हो सकती। निकाह से आदमी मालदार होता है और हज से आदमी मालदार होता है। तजर्बा भी साबित है
کہ حج کے بعد نکاح کے بعد آدمی کی مالداری میں اضافہ ہوتا ہے، غریب نہیں ہوتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا بھی ہے باپ بھی ہے، بیٹا خاموش ہے، باپ سے کہہ رہا ہے آپ بات کیجئے لڑکی والے سے، تو باپ کہہ رہا ہم کو کچھ نہیں چاہیے، اگر بلیٹ دے دیجئے گا تو آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی، کیا فرق پڑے گا؟ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، اسٹیل کا پلنگ ڈبل ڈبل دے دیجئے، ایک پر داماد ایک پر بیٹی، بیٹی ہی داماد کو فائدہ ہوگا، ہمارا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بچے والی بھینس دے دیجئے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ کتنا بڑا سیانہ، کام بھی نکالنا چاہ رہا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا۔ انصاف سے بتائیے، میں دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو گاڑی ملی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو پلنگ ملا سامان ملا کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو بھینس ملی بچے والی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے بیٹے کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات، دیکھیے او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، او دنیا والا چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، کہنو کہ اٹھتے غریب اور بیٹی سامان مانگے چھے 2-5 پیٹی، کہنو کہ اٹھتے غریب اور بیٹی سامان مانگے چھے 2-5 پیٹی، گھوڑا سے بدتر چھے اج کو جوان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ۔ 7 فون آپ کا معاف ہے، اس کے بعد معافی نہیں، سیدھا جنازہ پڑھا جائے۔ دھیان سے سنیے گا، عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سنا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں دودھ کا برتن ہوتا ہے، ভাই আগে আগে চলে আসেন, মেয়েরা এইদিকে জায়গা করা হয়েছে ডান দিকে, আপনারা একদম গেটে বসে যাচ্ছেন, একটু পর্দার দিকটাও লক্ষ্য রাখুন, আপনাদের জন্য একটু সাইড ঘেসে ঘেসে বসে যাচ্ছে। সামনে জায়গা আছে, এদিকে সামনের দিকে, সামনের দিকেও আছে। جو لوگ کھڑے ہیں کھڑے کھڑے سنیے، بہت اچھا سن رہے ہیں، وہ کھڑے والے جو کھڑے کھڑے سن رہے ہیں وہ بہت اچھا سن رہے ہیں، اور جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی بہت اچھا سن رہے ہیں۔ آپ لوگ بہترین میزبان ہیں، جتنا اچھا سن رہے ہیں اتنی اچھے سننے کی امید رہی تھی۔ خیر اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے، آمین۔ اس محبت کو سلامت رکھے۔ چوتھا پیغام عورتوں کے حوالے سے آ رہا، جوان تک پہنچوں گا، مسلمان اور بچے تک پہنچوں گا، جلسہ میرے حصے کا ختم ہو جائے۔ بہت تیزی کے ساتھ نکل گیا، چونکہ آپ نے محبت میں سنا، آدھا حصہ میرے حصے کا جلسہ نکل چکا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس محبت کو اللہ سلامت رکھے۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں دودھ کا برتن ہوتا ہے، اس میں جب دودھ ہوتا ہے تو اوپر سے ڈھکن لگا دیتا ہے۔ اب ڈھکن کیوں لگاتے ہیں؟ بلی کے ڈر سے، کہ کہیں بلی آئے اور دودھ پی کر کے 9-11 نہ ہو جائے، اس لیے اس پر ڈھکن لگایا جاتا ہے۔ گھر میں بلی کو باندھ کر کے نہیں رکھا جا رہا، بلکہ دودھ کے اوپر ڈھکن دیا جا رہا ہے۔ غور کیجئے، میرے ایک جملے کو غور کیجئے گا، تیزی کے ساتھ مطالعہ نکل رہا ہے۔ آپ دیکھیے دودھ کے برتن کو، اس میں اگر دودھ ہے تو ڈھکن دودھ کے برتن پر رکھا گیا ہے، کس کے ڈر سے؟ کہ کہیں بلی اس پر حملہ نہ کر دے اور دودھ پی کر کے 9-11 نہ ہو جائے۔ بلی کے ڈر سے ڈھکن ہے، بلی کو باندھ کر کے نہیں رکھا گیا، بلکہ دودھ پر ڈھکن دیا گیا ہے۔
इसी तरह औरत के ऊपर पर्दा रखा गया है, हिजाब रखा गया है, ताकि आवारा लोग जो बिल्ली की तरह घात लगा करके बैठे हैं, औरत की आबरू लूट करके न चला जाए। दूसरी मिसाल आपके सामने रखे जा रहा हूं। तजर्बे में दो चीज साबित है कि आपको कहा जाता है ट्रेन में सावधान, पाकिट मार से सावधान, खाने पीने से पाकिट मार से सावधान। क्या मतलब? आप कमा करके पैसा आ रहे हैं, थोड़ी सी नादानी से आपका सारा सरमाया कहीं गोल ना हो जाए, पाकिट मार की जेब में चला ना जाए। क्या मतलब हुआ? दुनिया में दो चीज छुपाई जाती है, एक दौलत, अगर आप दौलत नहीं छुपाएंगे डाकू हमला करेगा, लूट लेगा, आप कंगाल हो जाएंगे, भीख का कटोरा हाथ में आ जाएगा। दौलत को छुपाया जाता है, और दूसरी चीज औरत है, औरत को छुपाया जाता है। दोनों में फर्क है, औरत को भी छुपाया जाता है, दौलत को भी छुपाया जाता है। दौलत अगर जाएगी, मुकद्दर में है तो वापस मिलेगी, दादा से गई है पोते को मिलेगी, नाना से गई है नवासे को मिलेगी, लेकिन औरत की अगर आबरू चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी। तीसरी बात को याद रखिए, आप देख रहे हैं कि मेरे ऊपर जेब है, इस जेब के नीचे भी एक जेब है, उसके नीचे भी जेब की जेब है। जानते हैं जो छोटा नोट होता है वो ऊपर की जेब में, जो बड़ा नोट होता है वो नीचे की जेब में। क्यों? बड़ा नोट की बड़ी हिफाजत होती है, छोटे नोट की छोटी हिफाजत होती है। छोटा नोट ऊपर है, बड़ा नोट नीचे है, इस नोट से भी ज्यादा औरत की कीमत है, उसको पर्दे में रखना होगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, जो औरत पर्दे में नहीं है, पर्दे से बाहर हो गई, उस औरत का नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं। 70% तलाक उन औरतों को पड़ती है। बेशक, एकदम ठीक। 70% औरत को तलाक पड़ रही है जो पर्दे से बाहर, उसके शौहर को शक हो गई, बिल्कुल पता नहीं कहां से आ रही है, कहां मुंह मार करके जा रही है। अल्लाह की बंदी पता नहीं गलत है कि सही है, अल्लाह बेहतर जानता। शक की बुनियाद पर रिश्ता खराब हो गया, और जब रिश्ता खराब हो जाता है तो औरत को जब कोई सहारा नहीं मिलता तो औरत खुदकुशी करती है। 70% औरत बेपर्दा औरत खुदकुशी करती है। आपको सुनकर के हैरत होगी, यूरोप में स्कूल में जब बच्चा दाखिले में अपना नाम लिखाता है तो माँ का नाम लिखाता है, बाप का नाम नहीं लिखाता। अब उस बच्चे से पूछा जाता है, बच्चा तुम माँ का नाम लिखा रहा, बाप का नाम? तो मेरा बाप है ही नहीं, मेरी माँ ने नाजायज ताल्लुक किया, उसके नतीजे में मैं पैदा हुआ, कसूर मेरे माँ बाप का है, सजा मुझको मिल रही है। बेपर्दगी का नुकसान दिखाने के लिए जा रहा। आज आप देखेंगे औरत घर में खाना पका रही है, अपने भाई अपने बहन को अपने शौहर को खिलाती है, इसको कहा जाता है गुलामी। यही औरत जब जहाज पर जाती है, चाय पेश करती है आवारा लोगों को, और वो आवारा लोग उसको हवस का निशाना बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है आजादी। ये उल्टी गंगा बह रही है। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। मुमताज अली साहब ने सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुसव्वदा पेश किया कि जो औरत पर्दे में रहती है बीमार होती है, जो औरत पर्दे में रहती है वो बहादुर नहीं होती, जो औरत पर्दे में होती है उसको तरक्की नहीं होती। उस मुसव्वदे को लेकर के सर सैयद अहमद खान ने फाड़ दिया कि जो औरत पर्दे में होती है वो रानी होती है, उसके लिए बाप अलग कमाता है, बेटा अलग कमाता है, भाई अलग कमाता है, शौहर अलग कमाता है। तुम्हारी हुकूमत चली गई, औरत को पर्दे से बाहर मत जाने दो, वरना औरत भी चली जाएगी। ठीक, 2 मिसाल 3 मिसाल आपके सामने आ रही है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ये बनात चल रहा है, यहाँ पर फातिमा बनाया जाता है, आयशा बनाया जाता है, इसलिए पहली फुर्सत में इस बनात को मजबूत करेंगे, इनके उलमा की ताज़ीम करेंगे, इनको ताउन करेंगे, अपनी बच्चियों को भेज करके इनमें तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। शादी के 5 महीने के बाद बच्चा हुआ तो शौहर ने कहा ये वक्त से पहले ही बच्चा हो गया, तो लड़की कहती है वक्त के बाद मेरी शादी हुई है, तो वक्त से पहले बच्चा नहीं होगा तो कब होगा? दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, अदालत में औरत आई, उससे हाकिम ने पूछा कि तुम्हारा पहला लड़का कितने साल का था? 12 साल का। दूसरा लड़का 8 साल का। तीसरा लड़का का 2 साल का। तुम्हारे 12 साल का लड़का तो समझ में आता है कि तुम्हारे शौहर को मरे हुए 14 साल हो गए। 12 साल वाला लड़का समझ में आ रहा कि मरने वाले शौहर का है। ये 8 साल वाला लड़का कैसे हुआ?
ये 2 साल का लड़का कैसे हुआ? तो लड़की कहती वो ना मरा है, मैं तो नहीं मरी हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। औरंगजेब बादशाह के दौर में एक औरत पकड़ी गई, उसके 4 शौहर थे। तो औरंगजेब ने कहा, वो बदतमीज औरत, तुम्हें पता नहीं कि मर्द एक मर्द 4 शादी कर सकता, लेकिन एक औरत 4 मर्द से शादी नहीं कर सकती। तो कहा कि कौन सा गलत काम किया? जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ था, उस पर अमल किया, कौन सा गलत काम किया? औरंगजेब ने कहा कि चोरी भी सीना जोरी भी। किस जलसे में गई थी? तो कहा वही महेशपुर के बगल में जो जलसा था, उसी जलसे में गई थी। मुकर्रिर कह रहे थे कि लोग क्यों जिना करते हैं जबकि 4 शादी की इजाजत है? कहा कि तो मर्दों के लिए कहा था। कि मर्दों के लिए नहीं, हम तो उसके बाद होटल चले गए थे पूरी कचौड़ी खाने के लिए, हमने यहीं तक मसला सुना, इसलिए उस पर अमल किया। कहा कि आइंदा पूरा मसला सुना करो, अधूरे मसले पर अमल मत किया करो। इंशाअल्लाह अपनी बेटी फातिमा को, अपनी बेटी आयशा को फिल्मी हीरोइन का लिबास पहनाएंगे। हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खैर वो लोग हाथ उठा रहे हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ग़ीबत में सबसे आगे औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम औरतों के हवाले से मुकम्मल हो गया, बच्चों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ उठाते उठाते बुरा हाल हो गया। खैर वो सोच रहे हैं कि इतनी देर बैठने के बाद गर्म हुआ, आगे बैठूंगा फिर ठंडी जगह को गर्म करना पड़ेगा। खैर माशाल्लाह आप लोग जिस तरह बैठे हुए बैठे रहिए, लेकिन जब मैं उठ जाऊँ सामने तो आप लोग भी सिमट करके आ जाइए। आपका जलसा इतना पुरबहार हो गया है कि उम्मीद नहीं थी। आप लोग बहुत खूबसूरत जलसा को बना चुके। अल्लाह आपको खूबसूरत फरमाए, आपके ज़मीन को रोशन फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं। हमारे बच्चे में, सहाबा के बच्चे में 3 फर्क दिखा रहा हूं। कोताही माँ बाप की दिखाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे माँ बाप बनिए, अल्लाह सहाबा की नस्लों की मिसाल आपकी नस्लों में पैदा फरमा दे। ध्यान से सुनिएगा, दिखाने के लिए जा रहा हूं। 2018 की रिपोर्ट है, 2018 की रिपोर्ट सुनाने के लिए जा रहा हूं। 1996 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की, वो सुनाने के लिए जा रहा हूं। आँख से पट्टी हटाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जुमा पढ़ने के लिए जब आएंगे आप तो 3 तरह के बच्चे आपको नजर आएंगे। एक बच्चा 6 साल से भी नीचे का, एक बच्चा 6 साल का, एक बच्चा 6 साल से ऊपर का। ये 3 मिसाल आपके सामने आ रही है। ध्यान से सुनिए। जुमा का दिन होता है, बाप से पहले बेटा तैयार होता है, वो हाथी के गले में बिल्ली का फंदा बाप लेकर के आ रहा है, दुम छल्ला लेकर के आ रहा है। माँ ने कह दिया जल्ले तू जलाल, तू इस बला को टाल दे। बला को बाप के गले में बांध दिया है। वो बाप 6 साल से नीचे बच्चे को लेकर के आ रहा मस्जिद में। अब जैसे ही नमाज में खड़ा हुआ, इधर BBC लंदन चालू है। उस बच्चे की वजह से पूरी मस्जिद की नमाज बर्बाद हो गई। वो बच्चा गुनहगार नहीं होगा, ये बानर बाप गुनहगार है। उसका तो नामे अमाल खुला ही नहीं।
बल्कि उसका गुनाह इस बात के नामे आमाल में लिखा जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, 6 साल से नीचे के बच्चे को मस्जिद में लाना हराम है, गुनाह है। 6 साल से नीचे के बच्चे को आपको मस्जिद में नहीं लाना, हाथ जोड़ करके आपसे कहता। दूसरा बच्चा आता है 6 साल का, जब बाप के बराबर में खड़ा रहता है तो इंसान रहता है, जैसे ही बाप की सब छोड़ करके पीछे जाता है तो 1 नंबर का शैतान होता है। ऐसे बच्चे को लाना जायज तो है, बेहतर नहीं है। 6 साल के बच्चे को भी आप घर में छोड़ दीजिए। हाँ, जो 7 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा, उसको लाना जरूरी है। उसको घर में छोड़ने पर आपको गुनाह होगा, ताकि उसकी आदत बचपन से नमाज की बन जाए और जवानी तक बाकी रहे। आज एक बात देखिए, गौर करने की, ध्यान से सुनिएगा। हम अपने बच्चे को नसीहत करते हैं, हमारा बच्चा हमारी नसीहत का असर नहीं लेता। हमारा बच्चा हद से ज्यादा शैतान, और हमारे बच्चे को अगर कोई रोके और टोके तो हम बुरा मान लेते हैं। अब गौर कीजिए, हमारे बच्चे को कोई रोकेगा टोकेगा तो हमको तो खुश होना चाहिए कि इस आदमी के दिल में मेरे बच्चे की तो हमदर्दी है। लेकिन ये बाप कितना बड़ा नादान है कि बच्चे को कोई अदब दे ये बुरा मान लेता। इसके बच्चे को अदब कहां से मिलेगा? इसलिए बुढ़ापे में ये बाप को जूता मारता। दूसरी बात को याद रखिए, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, आपको 2 काम नहीं करना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। 2 काम आपको नहीं करना। सबसे पहला काम, जब बच्चा घर के अंदर मौजूद रहे तो मियां बीवी झगड़ा मत कीजिए। बच्चा घर से बाहर निकल जाए, जो कुर्सी को फोड़ना है, हांडी को तोड़ना है, तोड़ते रहे। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर मौजूद रहे तो झगड़ा मत कीजिएगा। क्यों? कितना बड़ा नुकसान होगा आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं। वो बच्चा जो माँ बाप को झगड़ते हुए देखता अपनी निगाह से, वो निगाह से गिरा देता। जवानी में कदर नहीं करता, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देता। दूसरी बात को याद रखिएगा बहुत ध्यान से, जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे तो आपको मोबाइल में हाथ नहीं लगाना, बयान भी नहीं सुनना, कुरान भी नहीं सुनना, नात भी नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना है। मोबाइल को संदूक में रख देना। बच्चे की आदत खुद ब खुद छूट जाएगी। आपने बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ा, बच्चा आपके लिए मोबाइल छोड़ देगा जिंदगी भर के लिए। लेकिन आपने बच्चे के सामने अगर मोबाइल देखना शुरू किया, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786, खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग करता। आपको तो चलाने के लिए आता नहीं, वो 1 नंबर का मास्टर है, कहां से कहां पहुंच जाएगा। और जानते हैं 2018 की रिपोर्ट है, 2018 की रिपोर्ट है, नेट चलाने वाले बच्चे की तादाद कितनी है? 21%। और स्कूल का होमवर्क, मदरसे का होमवर्क कितना करते हैं? फी हफ्ता 16 घंटा। और नेट मोबाइल पर कितना रहते हैं? 22 घंटे। मेडिकल साइंस रिपोर्ट है, जो बच्चा 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल चला रहा है, 80% बच्चे बीमार पड़े। जो बच्चा आधा घंटा से ज्यादा नेट मोबाइल चला रहा है, उस बच्चे को दिमाग की अलग बीमारी है, दिल की अलग बीमारी है। जब आपके बच्चे की मशीन ही खराब हो गई तो आपका मुस्तकबिल रोशन नहीं करेगा, तारीफ करेगा। एकदम खत्म कर दिया। आप लोग ये बंगाल में हैं, बंगाल में तो नहीं है, झारखंड में। आप लोग 50-50 जबान की बंगाल की बोलते हैं और रहते हैं झारखंड में। आप लोग कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू है। इसलिए मैंने बार बार देखा आप लोगों को हाथ उठाते हुए, इधर भी सही उधर भी सही। ध्यान सुनिएगा, ये बंगाल है। 3 तरह के वजीर थे बादशाह के दरबार में। एक उसमें बिहारी था, दूसरा बंगाली था, तीसरा पंजाबी था। तो झगड़ा ज्यादा करते थे, काम कम करते थे। तो बादशाह ने कहा ये लोग झगड़ा क्यों करते? एक वजीर कहता था मैं बंगाली हूँ, बिहारी से अच्छा। एक वजीर कहता था मैं बिहारी हूँ, पंजाबी से अच्छा। हर आदमी अपने को अच्छा करता था, दूसरे को अच्छा करता नहीं था, इसलिए झगड़ा होता था। रिटायर वजीर ने कहा हुजूर तीनों का इम्तिहान लीजिए, जो पास करे उसको रखिए, जो फेल कर जाए उसको यहाँ से बर्खास्त कर दीजिए। कहा हाँ ये हिसाब है। तीनों को बुला करके बादशाह ने कहा तुमको क्या पसंद है? बिहारी ने कहा मुझे बैर पसंद है, लेकर के। बंगाली ने से कहा तो बंगाली ने कहा मुझे मालदा आम पसंद है, लेकर के। पंजाबी ने कहा कि मुझे कटहल पसंद है, कटहल लेकर के। तीनों लाइन से लग गए। तो बिहारी से बादशाह ने कहा देखो इम्तिहान हो रहा, बैर कैसे खाते हैं? कहा हुजूर छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं, गुठली निकालते हैं। कहा देखो छिलका भी नहीं फेंक सकते, चबाने की इजाजत नहीं है, गुठली भी नहीं निकाल सकते,
निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, सुधवा बैर था, कहाँ पास होगा, जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जब खोखी की तो बैर अंदर नहीं गया, दोबारा मुंह में बैर वापिस आ गया तो हंसने लगा। तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई, ये रोता है ये तो समझ में आता है कि बैर जाकर के अटकता है, मौत का खौफ होता है इसलिए रोता है, लेकिन हंसता क्यों है? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल है। छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा, ये लंका जलाएगा लंका बुझाएगा नहीं। बच्चे को स्क्रीन टच मोबाइल से दूर कीजिए, क्रिकेट के बल्ले से दूर कीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा मुकद्दर का सिकंदर होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मुसलमान बने या ना बने मगर डॉक्टर बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ, पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। ताजिर बनाओ शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। जवान लोग तैयार हो जाइए, आपके हवाले से पैगाम आ रहा है। बहुत अच्छा माहौल इस जलसे का है, दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आमीन। जवान लोग तैयार है सुनने के लिए, पैगाम कबूल करने के लिए? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग किसी दुआ से जवान होने वाले नहीं हैं इस दुनिया में। जवानों के हवाले से पैगाम आ रहा है, ध्यान से इसको सुनिएगा। ये पैगाम अगर हमारे जवान कबूल करते हैं, अभी मुकेश अंबानी का इंटरव्यू आया, उनसे पूछा कि भाई तुम कितने पढ़े लिखे हो, इतने मालदार हो गए। दुनिया में तीसरा अरबपति है मुकेश अंबानी, उसका इंटरव्यू आया, मैं अपने जवान के सामने शेयर करने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा तरक्की करने के लिए प्रोफेसर होना जरूरी नहीं है, डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, बल्कि जिसने वक्त को बचा लिया, वक्त की कदर कर ली, वही मुकद्दर का सिकंदर होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल की अदालत में एक जवान आया, आपने फरमाया ओ जवान क्यों आए हो? कहा हुजूर ये शराब की बोतल है, मैं इसको हराम समझता हूँ, पीता नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जब तक पियोगे नहीं तुमको शिफा नहीं मिलेगी, इलाज नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस डॉक्टर ने तुम्हें बताया वो गलत बताया, ये दारू बीमारी है, बीमारी से बीमारी मिला करती है, शिफा नहीं मिला करती है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जवान दारू की बोतल लेकर के सड़क से गुजर रहा है, कमर में दुर्रा बांध करके हजरत उमर सामने आ रहे। जवान की जैसे ही नजर हजरत उमर पर पड़ी कि कमर में दुर्रा है, पेशाब रुक गया, नवस्था रुक। अब दिल दिल में कहता मेरे खुदा आज तू ही इज्जत आबरू बचा सकता है। अगर उमर को पता चल गया कि मेरे हाथ में शराब की बोतल है तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उड़ जाएगा। देखिए दिल से खुदा को कह रहा है, उस खुदा ने उस बेबस जवान की तौबा कबूल कर ली है। हजरत उमर तेज पांव से करीब आकर के पूछते हैं जवान तुम्हारे हाथ में क्या है? तो जवान के मुंह से निकलता है कि ये शराब नहीं है। तू झूठ बोलता है, ढक्कन खोल करके दिखाओ।
حضرت عمر نے اپنے ہاتھ میں بوتل کو لے کر کے جب ڈھکن کھولا، اللہ نے اس جوان کی توبہ قبول کر لی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ سبحان۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، جلدی سے ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ چکھنا لینے کے لیے اپنے نوکر کو بھیجا، مرغی کا گوشت لے کر کے آؤ، شراب کا جام ہے، جب چکھنا آئے گا تو مزہ پینے کا کچھ اور ہی ہوگا۔ 4 روپیہ دے کر کے بھیجا، جب دیکھا تو جلسے میں آیا، چندہ ہو رہا تھا، اس نے سوچا جلے تو جلال تو اس بلا کو تھا، چکھنا نہیں لیا، چندے میں وہ 4 روپے ڈال دیا، 4 دعا کراتا ہے، واپس ہو گیا۔ مالک نے کہا کم وقت کہاں تھے، اتنی دیر سے میں تمہارے چکھنے کے انتظار میں۔ کہا حضور چکھنا تو آیا نہیں، وہ پیسہ میں نے چندے میں دے دیا۔ مالک ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، کہا چندے میں دیا کیوں دیا؟ کہا 4 دعا کرائی۔ کیا دعا تھی پہلی؟ کہا پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ کہا تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ مالک نے کہا میں تمہیں اس کے بدلے 400 روپے دیتا ہوں، دے دیا۔ کہا دوسری دعا بتاؤ؟ کہا دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اس شرابی کی غلامی سے نجات دے دے، آزادی دے دے۔ کہ تمہاری وہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ مالک نے کہا چلو میں نے اپنی غلامی سے تمہیں آزاد کر دیا۔ کہا تیسری دعا بتاؤ؟ کہا تیسری دعا یہ تھی اے میرے مالک، اے میرے خدا، میرے مالک کو شراب سے توبے کی توفیق دے دے۔ کہا تمہاری یہ دعا بھی قبول ہو گئی، میں تمہارے سامنے خدا کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ حلق کے نیچے شراب نہیں آئے۔ کہا چوتھی دعا بتاؤ؟ نوکر نے بتایا کہ چوتھی دعا یہ کرائی کہ اللہ میری بھی مغفرت فرمائے، میرے مالک کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو کہتا ہے کہ یہ میرے بس کی نہیں ہے۔ رات ہو گئی، سوتا ہے، خدا کی بشارت ہو گئی، میرے بندے جو تمہارے بس میں ہے تم نے وہ کام کیا، میں خدا قادر ہوں جو میرے بس میں وہ کام نہ کروں، میں نے تمہیں بھی معاف کیا، تمہارے نوکر کو بھی معاف کیا، سب کو معاف۔ 2-3 مثال اور آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ عیسائی پوپ نے کہا کہ مسلمان جوانوں کو توپ سے مارنے کی ضرورت نہیں، تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں، 3 کام میں مسلمان جوانوں کو لگا دو، یہ قوم برباد ہو جائے۔ اس نے پہلی چیز بتائی، زنا سے ناپاک کر دو، شراب میں ڈبا دو، گانے میں مست کر دو، ان کو توپ سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود مر جائے۔ بے شک، دھیان سے سنیے، حضرت داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو نصیحت کی کہ بیٹا تمہارے پیچھے شیر آ جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بیٹا تمہارے پیچھے سانپ آ جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کہ ابا حضور جان چلی جائے گی؟ کہ جان جانا مقدر ہے تو جائے گی، اگر مقدر نہیں ہے تو جان نہیں جائے گی، اگر جان چلی ہی گئی تو ایمان نہیں جائے گا۔ لیکن بیٹا اگر تمہارے پیچھے کوئی اجنبی عورت، فلمی ہیروئن تمہارے پیچھے آ جائے تو اب اپنے ایمان کی خیر منانا، اگر دھیان نہیں رکھو گے تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ بے شک بے شک۔ دھیان سے سنیے گا، جوان آیا اللہ کے رسول کی مجلس میں آیا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، رات کا سناٹا ہے، ایک عورت کے پاس جوان آ رہا ہے، غلط ارادے سے آ رہا ہے۔ عورت نے محسوس کر لیا کہ رات کے سناٹے میں جوان میرے پاس آیا ہے، یہ دال کالی ہی نہیں ہے، پوری دال کالی معلوم ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ زنا کرنے کے لیے آیا، منہ کالا کرنے کے لیے آیا۔ اس عورت نے کہا ایک کام کرو، باہر دیکھ کر کے آؤ کہ کوئی سو تو نہیں، کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ جوان گیا، ایک مرتبہ آیا، دیکھ کر کے کہا سب سو رہے، دوسری بار آیا، کہا کہ سب سو رہے، تیسری بار آیا، کہا سب سو رہے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے؟ جوان کی نفس ٹھار ہو گئی، خدا جاگ رہا ہے، اتنی بڑی جرأت کیسے کر سکتا ہوں؟ آخری مثال جوان کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک جوان آیا، منطق سے نکلنا چاہ رہا تھا، اللہ کے رسول نے فلسفے سے پھنسا۔ جوان نے کہا یا رسول اللہ میں زنا کرتا ہوں، مجھ کو اجازت دے دو تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ جوان بڑا خوش تھا کہ رسول اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، مسلمان بھی ہو جاؤں گا، 1 تیر 2 شکار، زنا بھی کروں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، عقل مند تھے، عقل سے بات کیا۔ کہو جوان تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ کہو جوان غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے،
तुम्हारी बीवी और बहन के साथ कोई ऐसा करे उसका कीमा बना दोगे, लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपने सुना होगा एक मुल्क है जर्मनी, उसका ही वहीं का रहने वाला था हिटलर। हिटलर ने देखा क्रिकेट हो रहा, इंपायर से पूछा कि कौन जीता कौन हारा, कहा हुजूर टेस्ट मैच चल रहा, 3 दिन हो गए हैं अभी नतीजा नहीं आया, 3 दिन और गुजरेंगे तब नतीजा आएगा कि कौन जीता कौन हारा। तो हिटलर ने कहा कि आज के बाद ये खेल नहीं होगा, इस मुल्क में कभी ये खेल नहीं होगा। 11 बंदर नाचते हैं और पूरी दुनिया तमाशा देखती है। इन बेवकूफों को पता ही नहीं कि हमारा वक्त अलग बर्बाद हो रहा है, उम्र अलग बर्बाद हो रही है। 3 चीज जाने के बाद कभी वापस नहीं आती, मुंह की निकली हुई बात वापस नहीं आती, कमान से निकलने वाला तीर वापस नहीं आता, जिंदगी का जो हिस्सा गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता। एक आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। हारून रशीद का दरबार है, एक जवान आया, सुई गाड़ करके धागा लिया, जोर से निशाना मारा, नाक से धागा पास कर दिया। अब इधर से ताली बजी उधर से ताली बजी, तो बादशाह ने कहा कि 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों को हैरत हुई कि भाई इतना अच्छा करतब दिखाने वाले को 10 रुपया इनाम मिल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन 10 जूते क्यों मारे जाए? तो कहा कि ये नालायक जवान करतब के पीछे अपनी जवानी को बर्बाद किया। अगर ये इल्म के पीछे, हुनर के पीछे लगा देता तो कितना कीमती होता, खुद भीख देने वाला होता, भीख मांगने वाला नहीं होता। इसलिए इसे 10 जूते मारो। हाथ उठा करके हमारा जवान वादा करे कि आज गुनाह करेंगे कल फुर्सत से तौबा करेंगे। हाथ उठाइए माशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंसे, आप सोचे थे कि बेफिक्र हो जाएंगे, फंसने की जरूरत नहीं है। जवानों को जरा परवाह नहीं की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जलसा निकल गया जवानों के हवाले से। आखिरी पैगाम आपसी इत्तेहाद के हवाले से आ रहा है, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। सुनने के लिए कम तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ज्यादा तैयार, आपको कम ही सुनाने वाले, ज्यादा तैयार है, हम भी कम ही सुना रहे। ध्यान सुनिएगा, आखिरी मुताला, आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आज मुसलमानों को दुनिया की भी तरक्की नहीं है, दीन की भी तरक्की नहीं है। 2 वजह से। दुनिया में भी मुसलमान पीछे, दीन में भी पीछे। क्यों? कुरान को छोड़ा इसलिए दीन में पीछे। आपसी इत्तेहाद नहीं है, झगड़ा है, इसलिए दुनिया में पीछे। 3 कौम पूरे हिंदुस्तान में तरक्की कर रही है। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ की अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उन्होंने कहा कि 3 कौम इस हिंदुस्तान में तरक्की कर रही है। एक मारवाड़ी है, महता है, गुज्जर है, उसमें मुसलमान नहीं। 2 वजह से तरक्की कर रही है। अगर मारवाड़ी में कोई नीचे गिरता है तो सब लोग मिलकर के उसको संभालें, चाहे 100 मरतबा गिरे, 100 मरतबा संभालेंगे। लेकिन मुसलमान में अगर कोई गिरे
तो उसको ताना मारेंगे, अगर कोई ऊपर जाए उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर करेंगे। बिल्कुल ठीक। और दूसरी वजह मड़वाड़ी में आप देखेंगे कि उनका झगड़ा घर में ही बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। और हमारा झगड़ा जब तक मुकदमा अदालत में नहीं जाएगा मसला हल ही नहीं होगा। और जानते हैं 2011 की रिपोर्ट है, मुसलमानों का डोरी एक्ट मुकदमा एक जिले में 33,000। आज हम अपने चाल से बर्बाद होते जा रहे हैं, पर न अल्लाह ने हमें बर्बाद नहीं किया, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही, ध्यान सुनिएगा। दो भाई का झगड़ा हुआ है एक दरख्त के मामले में, अदालत में केस चला गया। 20 साल के बाद फैसला आया कि उस दरख्त को काटो, आधा एक भाई को दे दो, आधा दूसरे भाई को दे दो। अब दोनों भाई के जेब में पैसा नहीं, लड़ते लड़ते कंगाल कि दरख्त कटा सके और बंटवारा कर सके। चौथा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिद में गया, इमाम ने वलज़ालीन कहा, इसने आहिस्ता से आमीन कहा, उसने जोर से आमीन कहा। सलाम के बाद उसने तमाचा इसको मारा और इसने इसको तमाचा मारा। इसकी तरफदारी में 10 लोग खड़े हो गए, उसकी तरफदारी में 10 लोग खड़े हो गए। मस्जिद में एक खुदा के घर में 2 मुसलमान, 2 खानदान लहू लहान। अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ है, कांधला का किस्सा है, अंग्रेज की हुकूमत है, अंग्रेज की अदालत में मुसलमान का मस्जिद का झगड़ा पहुंचा है। 5 मिनट तक अंग्रेज को समझ में नहीं आया कि ये आमीन जमीन का नाम है, मकान का नाम है, दुकान का नाम है, किसका नाम है। जब वकीलों ने बहस किया तब अंग्रेज को समझ में आया कि आमीन दुआ का नाम है। उसने जजमेंट कितना प्यारा लिखा, वो हमारी आंख खोलने के लिए काफी है। उसने कहा कि आमीन की 3 किस्में, एक जोर से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है, एक आहिस्ता से आमीन कहना, यह भी हदीस से साबित है, और तीसरी किस्म आमीन की है आमीन बिशर्त, फितना उठाने के लिए आमीन कहना, यह हदीस से साबित नहीं है। ये हनफी भी गुनहगार है, ये सलफी भी गुनहगार है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह आपसी इत्तेहाद रहेगा। माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, मदद करेंगे, ताना नहीं मारेंगे, एहसान करेंगे, हाथ नहीं खींचेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। और जब मुकदमा हार जाएंगे तब अपने भाई को माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आकर के फंसे। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा। हालात है, हकीकत है, उसको सामने ला रहा है, इसके हम भी जिम्मेदार हैं, आप ही जिम्मेदार भी हैं। ध्यान से सुनिए। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की मिसाल आज क्या है, कुत्ता और घोड़े की तरह। घोड़ा कुत्ते से कह रहा था, यार मेरे अंदर कितना कमाल है, जब मैं टाप मारता हूं तो मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बढ़कर के मेरे अंदर है, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। यार छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है, ठीक है मुकाबला हो जाए। तो जलसे का कुत्ता जलसे का घोड़ा, यहां से दौड़ना है, महेशपुर पास करके पाकुड़ पहुंचना है। जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा, जो पीछे रह जाएगा वो हार जाएगा। तो जलसे का घोड़ा दौड़ करके महेशपुर में पलट करके देखा तो जलसे का कुत्ता जलसे ही में बैठा हुआ है, दौड़ने का नाम नहीं ले रहा। तो घोड़ा आकर के बोलता, क्यों छोटे मियाँ, दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। तो कुत्ते का जवाब सुनिए, और हालात आपके सामने आईने की तरह लेकर के आ रहा हूं। कुत्ते ने कहा, यार मैं तुमसे परेशान नहीं हूं, मैं तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मैं तुमसे ज्यादा फास्ट दौड़ता हूं, मैं तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, मैं तो अपनी कौम से परेशान हूं। मैं जलसे का कुत्ता जैसे ही यहां से दौड़ूंगा, महेशपुर का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। अपने आमाल बदते जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बदते जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे
अल्लाह ईमान सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं, अपने आमाल बद पे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं, मनफात एक है इस कौम की नुक़सान भी, एक ही सब का नबी भी ईमान भी, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए अल्लाह आफत से आपको निकाल लेगा। 3 वजह से आफत आती है, गुनाह करेंगे आफत आएगी, गलत कमाएंगे आफत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे आफत आएगी। मैं गारंटी लेता हूँ तीनों चीज़ों को छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। 3 काम पर खड़े हो जाइए, पूरे कुरान पर आप खड़े हो जाएंगे, अल्लाह इज्जत की चोटी पर आपको पहुंचा देगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहता शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात हुआ इसकी, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, मौलाना मुफ्ती जनाब सादुल नजीब साहब কাসমি দারুল দেওবন্দ পড়াশোনা করেছেন। আমাদের সামনে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে